Hello everyone, welcome back to my channel. And today this video is going to be about oceanic studies within Blue Humanities. So when I was just doing my research, I realized that now a lot of students are researching on Blue Humanities or have taken up certain electives or papers within this broader framework, which also comes under eco-criticism and environmental studies. And also, if you are going to appear for UGC NET English Literature exam, then Blue Humanities is also a very emerging field that you cannot miss to cover. So this video is just an introduction to oceanic studies. And yes, thank you for being here. I have also uploaded some of the other videos. Please don't forget to check them out. So, understanding oceanic studies within Blue Humanities, we will be moving forward. First, we will be covering an introduction to this field. Oceanography, which is also called as ocean science or oceanic studies, examines the roles of oceans placed within the thought, theory and practice. Basically understanding कि क्या role है oceans का within our theory, within the role that they contribute towards the environment, or basically understanding oceanic science. इसमें क्या क्या include होता है? Ocean color, ocean food, everything about the ocean is included within ocean science and ocean studies. Basically mapping out the entire ocean to understand ocean कैसे contribute करता है, ocean का अपना aquatic ecosystem क्या है, ocean से हमें क्या क्या foods मिलते हैं, how does ocean temperature regulate itself, क्या क्या अंदर organisms हैं. Everything about the ocean is included under the category of or under the framework of oceanic studies. It is an interdisciplinary field that investigates oceans from multiple angles. सब कुछ मतलब ओशंस को अगर हमें अप्रोच करना है तो हम इन सारे एंगल्स को अप्रोच करेंगे. उनके फिजिकल, केमिकल, जोग्राफिकल वो किस एरिया में है, यू नो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली स्फेयर जहाँ पे वो लोकेटेड है, इकोलॉजिकल, उनके आसपास इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स क्या है, सोशली हम ओशंस को कैसे देखते हैं, ओशंस हमारे ट्रेडिशंस कल्चर्स का कैसे इतने बड़े पार्ट है, कितने स्टोरीज कितने नैरेटिव्स बने हुए हैं ओशंस पे. देन वी हैव द फिजिकल कैटेगरीज, ओशन के करंट्स कैसे होते हैं अंदर नीचे, फिजिकली ओशन के क्या क्या है, केमिकल, ओशन का वाटर जो मेकअप होता है वो कैसा है, what all chemicals can be extracted from ocean water. So it is a very interdisciplinary, very broad, and very emerging field. And oceans are not just metaphors in literature or philosophy, but they are real lived spaces. वो एक रियल लिविंग एंटाइटी है जो कि ह्यूमन लाइफ को शेप करता है, ह्यूमन वर्क उस पर डिपेंड करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है. And oceanic studies are increasingly important in the modern world due to climate change, rising sea levels, and human exploitation of marine resources. अगर हमें देखना है पूरी तरीके से, अगर हम इको क्रिटिसिज्म को एक्सप्लोर करें या पूरी तरीके से जो भी इकोलॉजिकल डैमेजेस हुए हैं हमें हमारे इन्वायरमेंट को, सो वी नीड टू लुक एट द स्टडी ऑफ द ओशंस. कैसे क्लाइमेट चेंज भी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइजिंग सी लेवल्स क्यों हो रहे हैं. So everything that we study related to the oceans is included under oceanic studies and oceanic science. Next we have इस स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, जो जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर प्लांट्स आर देयर, वेदर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आर देयर, एवरीथिंग लिविंग इज इंक्लूडेड. बट ऑल्सो नॉन लिविंग एलिमेंट्स. वाटर बॉडीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक नॉन लिविंग एंटाइटी को भी स्टडी करते हैं, लाइक वाटर क्या है, नीचे स्टोन्स क्या क्या हैं, कोस्ट लाइन्स जो इन ओशंस के साथ कनेक्टेड हैं वो क्या क्या है, जो आसपास पेड़ लगे होते हैं इन वाटर बॉडीज़ के आसपास, एटमॉस्फेयर कैसे कनेक्टेड है. ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. कैसे एयर सर्कुलेशन होती है, एवरीथिंग अबाउट द ओशन, सिर्फ लिविंग नहीं. तो ओशनिक स्टडीज़ एक ये पॉइंट मेकअप करता है कि जब आप ओशनिक स्टडीज़ को पढ़ते हो, सो यू नॉट ओनली टेकिंग इन टू कंसिडरेशन लिविंग एलिमेंट्स बट ऑल्सो द नॉन लिविंग एलिमेंट्स. Focuses on water circulation, tidal patterns, ocean currents, and chemical makeup. Examines human impact on oceans कि humans के क्या क्या impacts रहे हैं oceans पे, जैसे कि pollution किया है, overfishing हुई है, coastal development हुआ है. It investigates the movement through water bodies such as whale migration and human maritime activity. कि जो जो movements करते हैं humans उनके क्या क्या impacts होते हैं. कि अब मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी शिप जा रही है तो जो नीचे के एनिमल्स हैं
some might even die, some might even not be able to survive. तो ये whale migration होती है उसकी वजह से, human maritime activity होती है. Then we have preventive measures and solutions. तो जब हम oceans के बारे में पढ़ते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें समझ पाते हैं कि ये क्यों हुआ है, हम उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं. एंड दस ओशंस प्रेजेंटली आर कैटेगराइज्ड into these five major bodies, but I think this is something which is not relevant if you're looking at it from the perspective of literature, but just for knowledge I have included this point. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ओशन स्टडीज़ के, इफ़ वी आर टू इंक्लूड कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. टू एड्रेस द प्रेजेंट इकोलॉजिकल चेंजेस, टू स्टडी द हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर ऑफ ओशंस. अब तक ब्लू ह्यूमैनिटीज़ का मेन फोकस यही रहा है कि अब तक हम लैंड के बारे में फोकस करते रहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये हो रहा है, लैंड में ये डेवलपमेंट हुई है, पहले लैंड ऐसे दिखती थी फिर ऐसे हुई, बैटल्स के बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ, बट वाटर के बारे में इतना फोकस नहीं रहा है. तो अगर हम वाटर पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे कि पहले वाटर कैसा था, अब उसकी प्रेजेंट स्टेट कैसी है, और आगे वाटर कितना रहेगा, उसकी स्टेट क्या रहेगी, उसका केमिकल मेकअप क्या रहेगा. So then, to collect data to address water crisis and environmental challenges, of course, अगर हम किसी चीज़ की study कर रहे हैं, we will have data collection as well, because it helps us analyze कि क्या चीज़ कितनी ज़्यादा contribute कर रही है for all the damage to the environment. It helps us understand how pollution and human activities affect marine life and ecosystems. So, not always placing humans at the center of all activities, ये हमें ये भी अलाउ करता है समझने के लिए कि कैसे जो मेरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, जो नीचे की लाइफ चल रही है, वो कितनी ज़्यादा अफेक्टेड हुई है पोल्यूशन से, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका जाता है पानी में. सो नॉट ऑलवेज प्लेसिंग ह्यूमंस एंड लैंड एट द सेंटर ऑफ ऑल स्टडी, बट ऑल्सो टू प्लेस वाटर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स under focus. Then we have explored natural oceanic processes such as currents, tidal cycles, and marine migrations. अगेन फिजिकली हमें ओशंस को समझने के लिए सब कुछ समझना पड़ेगा कि वो कैसे फ्लो करती हैं, कब उनका फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, टू अंडरस्टैंड सुनामीज, टू प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स की कैसी जब वो शिफ्ट्स होती हैं तो कैसे पानी आएगा, हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना. उसके लिए वी नीड टू स्टडी ओशंस, राइट. Then develop technology for ocean monitoring such as AI driven ocean mapping. अब काफ़ी ज़्यादा AI हो चुका है उसके लिए, ओशंस को काफ़ी ज़्यादा दे आर, एक तरीके से अच्छा भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स ले पा रहे हो, बिकॉज AI कैन थिंक अ लॉट ऑफ, इट कैन कंसिडर लॉट ऑफ फैक्टर्स. बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से ओशंस भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. द मोर द ह्यूमन लैंड इज एक्सपैंडिंग, द लेसर और इवन कम स्पेस बचती जा रही है फॉर ओशंस टू बी इन देयर नेचुरल स्टेट्स. अब इसमें एक और पॉइंट है, इफ़ यू आर लिटरेचर स्टूडेंट, ओशंस के कितनी ज़्यादा मेटाफर सिंबल रहा है, इवन जो ग्रेटेस्ट एपिक्स रहे हैं उनमें भी ओशंस की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रही है. लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हैव अंडरटेकन ओशनिक जर्नीज. तो ओशंस का ट्रेडिशनल, लिटरेरी, सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं. एंड इफ यू आर स्टडिंग blue humanities, so then this is again a very new topic that you can take into consideration. Next, we have literature. Yes, literature has historically explored the complex relationship between humans and all water bodies. ये कोई एक डायमेंशन का रिलेशनशिप नहीं है कि वाटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, कि बहुत अच्छा ही रहेगा हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं रहा है. एक बहुत ही मल्टीपल लेयर रिलेशनशिप रहा है. Ancient epics such as ये जो दो टेक्स्ट दिए हुए हैं depict the sea both as an obstacle and a journey. इन्होंने ह्यूमंस पे इंटरवेंशंस भी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी आए हैं, बट देन इट इज़ सच अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. स्टोरी टेलिंग काफ़ी ज़्यादा ओशंस के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं, ये सब हैं इन चीज़ों में. देन द सी ऑफन सिम्बलाइजेस फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल. की सिंबल्स इन सी लिटरेचर क्या होते हैं? सी, शिप्स, सेलर्स एंड मेरीन क्रिएचर्स. So again, I will be making some more videos on oceanic studies. Please do subscribe the channel and comment if you are into reading more about blue humanities. I'll create more videos. Thank you.